Good morning students. Today I will teach you chemistry for class 10th. Today's lecture is completely based on revision of chapter 1. So you have to see this video properly and you have to pay attention in all headings explained today. Chemical reactions. First we have to understand what is chemical reactions. The process in which when reactants react with each other, then they form a new substance with new chemical properties. During chemical reactions, old bonds are broken and new chemical bonds are formed. You can see here hydrogen gas react with oxygen, then it form water molecule. हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, जबकि ऑक्सीजन गैस सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यह जलने में सहायता करती है। दोनों ही गैस हैं, लेकिन दोनों का रिएक्शन हो जाने के बाद लिक्विड बन गया और यह लिक्विड वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। ये जलने वाली गैस है, ये जलाने वाली गैस है और यह बुझाने वाला वाटर है। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. Products are always written right side of the chemical reactions and the arrow indicates the formation of product. Now we have to see how we can identify the chemical reactions has been taken place. कैसे हम जानेंगे कि chemical reaction हो चुका है? जब भी कहीं chemical reaction होगा तो उसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई चेंजेस हो सकता है या कोई दो चेंजेस हो या ऑल चेंजेस कैन बी टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन. इवोल्यूशन ऑफ गैस. किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान गैस निकल सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ब्रोमीन गैस, क्लोरीन गैस, कोई भी गैस निकल सकती है रिएक्शन के दौरान. चेंज इन टेम्परेचर. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ सकता है या उस केमिकल रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हीट देना पड़े. अगर हीट देना पड़ता है तो यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अगर हीट रिलीज हो तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा. चेंज इन स्टेट. We can see in this reaction there is change of state. Gaseous reactants are changed into liquid product. Formation of precipitate. Chemical reaction के दौरान precipitate बनता है. Precipitate means insoluble substances. Dear students, you can know during chemical reaction taste of the substance may be changed, like in rancid substances. Now we have to discuss about type of chemical reactions. In previous videos I have explained all the points, but now we have to summarize it and revise whole chapter in a single video. Type of a chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction. redox reactions में reduction और oxidation दोनों होता है. endothermic reaction, exothermic reaction, neutralization reactions. There are so many type of reactions which you have seen here. combination reactions में reactant आपस में जो combine होता है तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है. जैसे C+O2 gives CO2.
यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन में कम से कम 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है। इट मीन्स इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more than 2 compounds or substances. Decomposition reaction takes place in the presence of heat, electricity and light. You can see here, when decomposition reaction takes place in the presence of heat, then it is called thermal decomposition reaction, like CaCO3 gives CaO plus CO2. Electrolytic decomposition reaction takes place in the presence of electricity, like 2NaCl when passed by electricity, then it will be decomposed into 2Na plus Cl2. Photolytic decomposition reaction. This reaction takes place in the presence of sunlight, that is 2AgBr. When sunlight is used in this reaction, then silver bromide will be broken or decomposed into silver and bromine gas. This is a displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। हियर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी कैन सी हियर AgNO3 plus NaCl, ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन में है। व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर देन दे फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और NaNO3 एक्वा सॉल्यूशन में बन जाएगा। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई न कोई प्रेसिपिटेट जरूर बनता है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता। नाउ वी हैव टू सी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एज नेम सजेस्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट दिया जाता है, जैसे CuSO4 5:2, दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट साल्ट। व्हेन हीटेड then it will be decomposed into CuSO4 plus 5:2. CuSO4 means anhydrous copper sulfate. Exothermic reaction में heat will be released out, like CaCO3 when react with water, then it forms calcium hydroxide solution plus carbon dioxide gas plus heat will be released. आपने देखा होगा जब घर में वाइट वॉशिंग होती है, दीवारों की पेंटिंग होती है, तो उस समय कैल्शियम कार्बोनेट में जब पानी डालते हैं तो पानी डालने से कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेज़ी से उबलता है। उसमें जो पानी है, पानी बहुत तेज उबलेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है पानी के साथ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वह पानी दूधिया कलर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, now we have to understand what is न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान बनता है, जैसे NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Here we can see OH and H is the ion of the water. So OH and H combined with each other, then they form H2O and NaCl will be formed, that is salt. Dear students, now we have to explain what is the redox reaction. In this reaction, reduction and oxidation takes place simultaneously. एक साथ जो है इस रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा. In previous video I have explained it, but now we have to revise. रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यानी ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, और जबकि रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है. नाउ वी हैव टू सी इन दिस केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपेंस. CuO plus H2 react, then
इट फॉर्म्स Cu प्लस H2O। तो CuO से Cu का बनना, यहाँ CuO से Cu बना, यानी CuO का रिडक्शन हुआ, क्योंकि CuO से ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ। नाउ वी हैव टू सी CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। CuO से Cu बन गया, यानी ऑक्सीजन CuO से रिमूव हो गया। तो क्या बना यहाँ पर? Cu बना। रिडक्शन ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिमूव होता है तब भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ से CuO से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ से रिमूवल होने की वजह से इसे क्या कहेंगे कि इसमें रिडक्शन हुआ। H2 के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, देन देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ H2। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान से समझिए आप, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पर CuO का रिडक्शन हो रहा है, तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू सी ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ZnO से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ ZnO का Zn में रिडक्शन हो गया, और C का CO में ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ क्या कहेंगे हम? ZnO का Zn में रिडक्शन हुआ, C का CO में ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ZnO का रिडक्शन, C का ऑक्सीडेशन। तो ZnO का रिडक्शन हुआ, इसलिए ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जबकि C का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए C रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल सी बात है। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ हम देख सकते हैं, यह Cl से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो Cl2 बना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो MnCl2 बना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बार ध्यान से समझ लीजिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Now you have to understand what is reduction. Addition of hydrogen is called reduction. या आप कह सकते हैं removal of oxygen is called reduction. Dear student, in this example you have to see CuO plus H2 gives Cu plus H2O. CuO से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो Cu बना, H2 से H2O बनना, यानी H2 में ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर, तो CO का CO में रिडक्शन, H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या यहाँ क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन CuO इट इज सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड, H2 इज सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अब जो रिड्यूस्ड हुआ है सब्सटेंस, जिसका रिडक्शन हुआ है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू सी कोरोजन एंड रेसिडिटी। इस चैप्टर में लास्ट में कोरोजन और रेसिडिटी है। कोरोजन इज ए फिनोमेना इन विच मेटालिक सब्सटेंस become destroy, या you can say the outer layer of the metal will be decomposed, destroyed by formation of oxide, hydroxide on its surface. When any metal comes in contact with the moisture,